सो गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू निवेश वेबिनार। आप सभी का निवेश के वेबिनार पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। माय नेम इज अंशु, होस्ट फॉर टुडेज इवेंट। मेरा नाम अंशु है और मैं आज के इवेंट का होस्ट हूँ। इवेंट पे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। सवाल पूछने के लिए स्क्रीन पर दिए गए चैट ऑप्शन को क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। सेशन के बाद हम एक एक करके आपके सवालों का उत्तर देंगे। दिस इवेंट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड द रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड सून। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। टुडे वी विल डिस्कस curious about SIP and let's decode it. For this, we have invited Mr. Ujjwal Sharma, segmented IFA and SIP, Nippon AMC. Ujjwal has over 25 years of experience in financial market and over 10 years of experience with Nippon in India Mutual Fund and worked across retail, HNIs, and banking and institutional businesses. Now, I'd like to request Sir to take the session forward. Over to you, sir. Uh, Thank you, Anshu, and thank you, everyone, for being part of today's session. It's a very exciting time when we have been talking about SIP, because almost a year back, everybody understand that SIP is good, but from last 6 months, I'm just hearing the noise that there is some kind of a jitteriness among the SIP, among the people who are been doing SIP. So it's a very good time that we are being, organize this session. I am really thankful to Nivesh for connecting with your partners on this. So my today's overall 20-25 minutes of discussion is on the importance of SIP, not on the only the perspective of the client. Sorry मतलब to interrupt केवल you. क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव से ही नहीं, but how it is important to you as a business perspective also. Why Ujjwal SIP sir, is being... हाँ बोलिए बोलिए. actually, can we continue in both languages, Hindi and English हाँ both? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, डोंट वरी, मैं Thank you. मैं दोनों में ही बात करूंगा. सो क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है एसआईपी क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से, और हमारे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से एसआईपी क्यों इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज, मतलब मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मोर और लेस इसी ऑब्जेक्टिव, इन दो ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि कैसे हम एसआईपी को बिल्ड करें, कौन से एरिया में हम हमारे इन्वेस्टर्स के साथ एसआईपी को बढ़ाएं, और कैसे एसआईपी को बिल्ड करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो इम्पोर्टेंस ऑफ एसआईपी in our business as well as for the customer perspective also. Let me share my presentation, and then we'll take it forward from there. I hope it is visible to you all. Yes, sir, it's visible. My slides are visible. Okay. You can do it in So guys, full screen. let's first understand, there's a very good quote from Earth Veda. Pratmanugya dhanam yah pradati sah dhasya tasya chayushyam chirakalam pravadate. The business in which we are is such a noble business. Believe me, friends, the business in which we are, हम जिस business में हैं, हम जो financial business में हैं, वो कितना noble business है, वो एक ये जो हमारे शास्त्र हैं वो उसको बताते हैं. One who assists the others by providing wealth for a noble purpose sees their own wealth and longevity flourish over the time. हम जो बिजनेस में हैं, वो बिजनेस हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं. और जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारी वेल्थ और हमारी लॉन्गेटिविटी हमेशा बढ़ती ही है. सो दिस इज what the basic understanding in the business which we are. And believe me, in my last 25 years of experience, meeting with a lot of people all across the location, all across the country, I have seen only the prosperity and the prosperity, upside and upside and upside. जो पार्टनर्स जिनके साथ मैंने 99 से मेरा काम चालू किया था, आज वो दे आर इन दी हाइट्स, मतलब वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ, इन terms of their client, everything has been grown. Even if I talk about myself also, being a part of the MF industry, I think I also enjoy the same kind of a thing, because whatever we had worked so far in last 25 years is all dedicated to our investors and investors objective and their wealth creation. So this is a very noble business in which we are, as we always think,
positive as we always talk about our investor wealth. Guys, एज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट एसआईपी, तो एक बहुत अच्छी बात हुई है पिछले 3 सालों के अंदर। आप लोग सुन रहे होंगे कि एफपीआई पैसा निकाल रहे हैं। अभी भी अगर मैं बोलूं, ये पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के अंदर करीब करीब 85,000 करोड़ के आसपास एफआईज ने विड्रॉ किया है इंडियन मार्केट से। राइट, वो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। दे आर एफपीआईज बेसिकली, मैं उनको एफपीआई तो बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर है, बट मेरे नॉमेनक्लेचर के अंदर मैं उनको टूरिस्ट इन्वेस्टर बोलता हूँ। तो जहां उनको अच्छा लगता है वो वहां जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भी घूमने जाना है तो आज आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे, आप कोई अच्छी जगह जाएंगे। इवन श्रीलंका एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन थी, बीच में वहां डिस्टरबेंस हुआ। कोई उस समय डिस्टरबेंस के अंदर कोई भी टूरिस्ट लोकेशन पे कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सो डेफिनेटली एफपीआईज भी जो है, दे आर बेसिकली टूरिस्ट इन्वेस्टर्स। तो जहां उनको अपने पैसे का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, आई थिंक दे विल डेफिनेटली ट्राई टू मूव इन टू दोज लोकेशन. So probably in last 6-7 months, we are seeing that FPIs are being moving away from the emerging market and more specifically from the Indian market also. But have this affected? Yes, this has affected. But the downside has been protected by very much. So today FPI means today SIP has given the freedom Indian financial market फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि अगर आप जनवरी का भी नंबर देखें, डिस्पाइट आप इंडस्ट्री कुछ भी बोलें, कितने टर्मिनेशन हो रहे हैं, वो है बिकॉज मैं कभी टर्मिनेशन मैं एसआईपी में ट्रैक नहीं करता हूँ। इवन मेरी कंपनी में भी और बाजार को भी जब मैं देखता हूँ, मैं तो केवल ये देखता हूँ कि कितना पैसा, हाउ मच मनी हैज कम टू म्यूचुअल फंड फ्रॉम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जनवरी के अगर आप नंबर देखेंगे तो करीब करीब 2,600, सॉरी 26,400 करोड़ रुपए के आसपास आपका इंडस्ट्री में इनफ्लो हुआ है थ्रू एसआईपी। और ये पैसा, अगर आप मैं इसका ईटीएस बोलूं, एवरेज टिकट साइज, तो आज की तारीख में भी 26,400 करोड़ के अंदर भी जो एवरेज टिकट साइज है वो मोटा मोटा आपका जो है 2,800 रुपए 3,000 के आसपास बनता है। तो बहुत स्मॉल टिकट साइज है। आई थिंक जो भी इसमें आ रहे हैं वो लंबे समय के लिए आ रहे हैं। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, एंड इट इज व्हाट शोइंग ऑल्सो। अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा देखूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु आर बीन स्टेइंग फॉर मोर देन 5 years इज बीन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। मतलब जिनकी एसआईपी 5 साल या उससे ऊपर के समय के पीरियड की है, अगर आप वो देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर वो परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो पीपल आर मोर अवेयर दैट एसआईपी जो है वो लंबे समय में, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज अगर ये 1 साल हटा दूं तो पिछले 3-4 सालों में एक तरफा ओवरऑल मार्केट के अंदर रिटर्न आया, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बट आई थिंक देर इज जेन्युइननेस दैट व्हाट वी हैव सीन इन दैट केस। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट एसआईपी फॉर द इन्वेस्टर, I just want to talk about, because we all are into the distribution of financial product, Sorry to right? interrupt you, but we are seeing currently slide number one only. Slides are not changed. ये दिख रहा है Huh. We are seeing only slide number one. अभी? Or one only. अभी? No, sir. अब? No, sir. It's not changing. अभी भी नहीं दिख रहा क्या? You can reshare your screen if possible. ओके, लेट मी चेक। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है कई बार। नो इशू, 1 मिनट में आपको दोबारा शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ फिर से आपके साथ शेयर करने की। Yes, sir. Now it's visible. Slide number four is visible. ये वाला आ रहा है अभी करंट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ? Ah, it's slide number एस आई three. पी हैज गिवन द फ्रीडम। अभी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ इज इट विजिबल अंशु? नाउ दिस वन, Yes, व्हाट sir. इज It's visible. इंपॉर्टेंट इन Now it's बिजनेस? visible. Now it's visible. परफेक्ट, परफेक्ट। सो गाइज, हम जब भी हमारे बिजनेस की बात करते हैं, या आप कोई भी बिजनेस की बात करें, किसी भी बिजनेस को अगर आप देखते हैं तो उसमें हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? व्हाट वी सी। अगर मुझे कोई प्राइस आर गोइंग आउट और वट एवर इट मे बी,
बिकॉज अगले 10 साल की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है among all the countries in the world, India has a better predictability as far as the growth is concerned, as far as the consumption is concerned, as far as the knowledge is concerned, as far as the development is concerned. I think India gives the pure, a long-term predictability as far as the growth is concerned of the economy. और किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रिडिक्टेबिलिटी है 10 साल की, तो डेफिनेटली कोई भी निवेशक होगा, कोई भी इन्वेस्टर होगा, उसको वो खरीदने की कोशिश करेगा और वो हमेशा प्रीमियम में रहेगा. हाउ टू अचीव आवर गोल? टू अचीव आवर गोल, व्हाट इज आवर गोल? अगेन आवर गोल इज दैट अपना बिजनेस बढ़े, हमारा कस्टमर बेस बढ़े, हमारा रीच बढ़े. सो उसके लिए एसआईपी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे बिजनेस में होना चाहिए. अब मेरा एक और तरीका है आपके बिजनेस को गेज करने का कि भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. तो उसको देखने के लिए मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूँ कि अगर आपका जो भी एयूएम है, फॉर एग्जाम्पल उज्जवल शर्मा एक एमएफडी है निवेश के साथ, मेरा जो एयूएम है वो 50 करोड़ का है, तो मेरी एसआईपी बुक कितनी होनी चाहिए? एक थंब रूल बोलता है कि मिनिमम 1% ऑफ माई एयूएम शुड बी ऑफ माई एसआईपी बुक. तो अगर मेरा 50 करोड़ का मेरा एयूएम है, तो मेरी एसआईपी बुक जो है मोटा मोटा 50 लाख की होनी चाहिए. अगर उतनी है तो आई एम राइट टू माई बिजनेस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अचीविंग द गोल सिस्टमैटिक वे. सो हमारा जो भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल एज अ पार्टनर हम लोगों ने जो बिजनेस चूज किया है, एमएफडी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस हमने लिया है, सो एज अ पार्टनर वी ऑल्सो हैव आवर गोल. गोल मीन्स हमारा बिजनेस बढ़े, we should also employ people under us, and there are a lot of other dreams that we try to associate with the business in which we are. I think those dreams are more or less whether to have a very good office or a very good luxury car. I think not only the investor can achieve by doing SIP with all those things, but for us as a partner, the main objective to achieve this uh, dreams is only through the SIP. A strong SIP book help us to get this objective right for ourselves over the period of a time. I think this is very known fact that SIP book has been grown very well. बट वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट, यहाँ की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की बात है, आप देखिएगा जो मैंने उसको बोल्ड भी करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, कि 20% ओवरऑल एयूएम जो है इंडस्ट्री का, जो कि इंडस्ट्री का जो ओवरऑल एयूएम है, आज इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 69 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री है, तो उसमें करीब 13,63,000 करोड़ के आसपास एसआईपी का है, विच इज 20% ऑफ द ओवरऑल बुक. सो अगर हमारा भी अगर 50 करोड़ का एयूएम है, क्या 50 करोड़ के एयूएम में 20% का कंट्रीब्यूशन मेरा एसआईपी एयूएम का है कि नहीं है, वो हमारे बिजनेस में देखना. अगर नहीं है तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम में हमारे जो नंबर ऑफ कस्टमर जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं अभी आज की तारीख में, सॉरी, तो वो लोग अभी भी कई लोग जो हैं एसआईपी के साथ एसोसिएटेड नहीं है. और मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक गलत नोशन है बाजार के अंदर कि एसआईपी रिटेल के लिए होती है. मैं कहता हूं एसआईपी एचएनआईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एसआईपी अल्ट्रा एचएनआईज के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. रिटेल के लिए तो है ही, बट जितना इंपॉर्टेंस रिटेल के लिए है, आई थिंक वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ क्रिएशन के लिए अल्ट्रा एचएनआईज और एचएनआईज के लिए एसआईपी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है. क्यों है वो इंपॉर्टेंट थिंग? मेरा मानना है ऐसा है कि जो इंपल्सिव डिसीजन होता है, लाइक आज बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, काफी नीचे गिर रहा है, आज आप किसी भी एचएनआई से बात करें तो सबका पोर्टफोलियो, बड़े से बड़े निवेशक का भी पोर्टफोलियो, जो बाजार के अंदर बहुत बड़े निवेशक हैं, आप पढ़ते ही होंगे बाजार के अंदर कि जो हिंदुस्तान के जो टॉप 10 वॉरेन बफेट हैं, उनका मोटा मोटा पोर्टफोलियो 20 से 25% के आसपास ड्रॉप हो गया है. उनका जो मार्केट वैल्यू है उनके पोर्टफोलियो का, वो ड्रॉप हो गया. तो ऐसे समय में आदमी जो निवेश करने की जो इच्छा होती है, जो इन्वेस्टमेंट करने की जो इच्छा होती है, बिकॉज दीज आर द टाइम व्हेन वन शुड इन्वेस्ट. पैसा इसी समय बनता है जब लोग भाग पैसा निकालते हैं या बाजार में एक सेंटिमेंट खराब होता है, उसी समय का आपको एक अच्छी वैल्यूएशन मिलती है किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी निवेश के अंदर. तो वो एक अच्छा समय होता है अपना पैसा वहां निवेश करने के लिए. बट बिकॉज एक फियर होता है मार्केट में, तो उस फियर के कारण चाहे आप कितने ही समझदार इन्वेस्टर हैं, चाहे कितने ही बड़े इन्वेस्टर हैं और चाहे कितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं, आप कई बार उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उस डाउनफॉल के अंदर मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. तो वो जो इम्पल्सिव डिसीजन है, उसको
आपको ओवर रूल करता है एसआईपी। अगर आप एसआईपी हर एक एचएनआई के साथ एसोसिएट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सो दैट इज व्हाट जस्ट आई लाइक टू हाईलाइट फ्रॉम दिस। ये एक छोटा सा ग्राफ है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपके बिजनेस में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस आपने फॉलो किया है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सोचा है लंबे समय के लिए करने के लिए, तो एसआईपी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रखता है। अभी जो आपने देखा, मैंने आपको बताया 26,400 करोड़ के आसपास का एसआईपी का बुक है इंडस्ट्री का। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, जो ग्रोथ हुई है एसआईपी की, एसआईपी बुक की पिछले 3 से 4 साल के अंदर, अगर मैं उसको 10 साल के एक लीनियर ग्राफ के अंदर हमने उसको प्लॉट करके देखा, तो एक ऐसा डेटा निकल कर आता है कि 2026 तक जो एसआईपी की बुक है इंडस्ट्री के अंदर वो 31,000 करोड़ की हो जाएगी। तो 26,400 करोड़ से 31,000 करोड़ की हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बुक 31,000 करोड़ की होने से पहले ही, मतलब 2026 से पहले भी हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज व्हाट, तो अगर 31,000 करोड़ का अगर मंथली इनफ्लो केवल एसआईपी से आएगा 2026 पे, और उसके बाद और भी बढ़ेगा, तो प्रोबेबली आप और मैं अगर एक समझदार बिजनेसमैन हैं तो इस बिजनेस को हम मिस नहीं कर सकते। इस अपॉर्चुनिटी को हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन हम देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे डेली डेली जो अपना टाइम है उसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं कैसे एसआईपी को, एसआईपी की बुक को बड़ा करूं, और कैसे मैं मेरे निवेशकों को एसआईपी के साथ जोड़ता चला जाऊं। आई थिंक जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मैं ये समझता हूँ निवेश के साथ जुड़ने का आप लोगों का, या ये है कि आपको डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप अगर देखें तो ये जो ग्रोथ आपने पहले ग्रोथ देखी, जो हम सोच रहे हैं 31,000 करोड़ के आसपास का एसआईपी का बुक बनेगा 2026 तक, इसका एडवांटेज कौन ले रहा है? इसका एडवांटेज वो लोग ले रहे हैं जो कि आज डिजिटली सेविंग है। आप देख रहे हैं कि कई सारे छोटे निवेशक, कई सारे बड़े निवेशक टीयर 2 सिटीज के अंदर, टीयर 3 सिटीज के अंदर, टीयर 4 सिटीज के अंदर वो लोग डिजिटली एसआईपी कर रहे हैं। एंड आई थिंक निवेश हैज गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी टू लिवरेज दैट एडवांटेज, टू लिवरेज दैट डिजिटल जर्नी टू एस्केलेट। तो आप निवेश के माध्यम से आप करोड़ों इन्वेस्टर्स के पास आप जा सकते हैं। और मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो मैं अभी एक लोकेशन पे गया था, जूनागढ़ लोकेशन पे। तो पार्टनर ने पूछा कि सर, मेरे क्लाइंटेल कैसा बढ़ाऊं मैं, हाउ कैन आई इंक्रीज माई क्लाइंटेल। तो मैंने उन सबको एक ही चीज पूछी कि भाई आपके यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितने कितने हैं। से फॉर एग्जाम्पल टू स्टार्ट विद, आपके यहाँ पे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होगा, मतलब जहां से अपने पानी सप्लाई होता है, तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, तो वाटर डिपार्टमेंट होगा। हाउ मेनी टाइम वी हैड विजिटेड दैट वाटर डिपार्टमेंट? नथिंग। वहां जाइए, वहां पे भी लोग बाग हैं, सरकारी लोग बाग हैं, सरकारी नौकरी है, सबकी एक अच्छी सैलरी है। Probably if we not reach there, we will not increase. So कस्टमर हर जगह है, इट इज ओनली दैट वी हैव टू अप्रोच। एक मेरे बड़े अच्छे पार्टनर है, मैं आपको उनका एक किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने उनके क्लाइंट बेस के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर जो है उनके पास, वो है एयर होस्टेस, वो है एयर होस्टेस और पायलट। सो ऐसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपने ऐसा इतना ये पर्टिकुलर सेगमेंट में आप कैसे गए? बोले उज्जवल जी, आप कभी भी फ्लाइट में जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि सब लोग जल्दीबाजी में उतरते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल उतरते हैं, मेरी भी आदत है। बोले उज्जवल जी, मैं आराम से उतरता हूँ, जब सब उतर जाते हैं उसके बाद मैं धीरे धीरे बाहर निकलता हूँ। वो 4-5 फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो बाहर की तरफ खड़ी रहती हैं, वो हमको ग्रीट करती हैं, तो मैं भी उनको ग्रीट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जब मैं नमस्कार करता हूँ तो मैं उनसे एक चीज जरूर पूछता हूँ, क्या आप एसआईपी के बारे में जानते हैं? क्या आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो मैं उनको मेरा कार्ड देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश आपका होना चाहिए। यही एक तरीका है, मैंने धीरे धीरे करते करते आई हैव इंक्रीज माई पे। और इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब समझदार लोग हैं। दे दे ट्रेवल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे ट्रेवल ऑल अक्रॉस द कंट्री in their job. So probably they understand and they feel that the importance of it. तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने मेरे को बोला कि मणिपुर से लेकर केरला तक मेरे पास कस्टमर है, जो कि वो बॉम्बे में है लेकिन उनके कस्टमर मणिपुर से लेकर केरला तक उनके कस्टमर हैं।
मतलब दिस इज हाउ, सो एवरीवेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक निवेश के साथ आपने जो एसोसिएशन किया है आपका, उसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट है टू लिवरेज दिस डिजिटल अपॉर्चुनिटी। और आज की तारीख में किसी के नॉर्मल आईएफए के पास, मैं कई आईएफए देखता हूँ जिनका ईयूएम 50 करोड़ है या 100 करोड़ है या 500 करोड़ है, आई थिंक उसके बाद वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, बस निवेश नहीं कर पाते हैं एक तो, दूसरा अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो दैट्स द वन ऑफ द रीजन विच आई फाइंड टू बी देयर। एक बहुत अच्छी चीज हम लोग बात करते हैं हमेशा कि भाई एसआईपी में मैटर क्या करता है, व्हाट डज मैटर इन एसआईपी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन एसआईपी। ये जो आप देख रहे हैं सब चीजें, इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है एसआईपी में जो मैटर करती है, वो है अमाउंट। फिर उसके बाद है टेन्योर, और फिर उसके बाद है एसेट एलोकेशन, और फिर उसके बाद है गैप। एक चीज है जो बिल्कुल मायने नहीं रखती है एसआईपी के अंदर जब अपन एसआईपी फोकस करते हैं, वो है स्कीम। स्कीम से कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक स्कीम है, अगर आप देखेंगे पिछले 27-28 साल का, एक स्कीम है जिसने 16% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन लास्ट 29 ईयर्स के अंदर। और वहीं एक दूसरी स्कीम है जिसने 23% का एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न दिया है लास्ट 29 ईयर्स के अंदर। अब 16% का भी कोई कम नहीं होता है रिटर्न, और 23% का भी डेफिनेटली अच्छा होता है। बट कोई मापदंड नहीं है, वेल्थ क्रिएशन दोनों में होती है, करेक्ट। तो स्कीम का मतलब नहीं है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो वर्स्ट परफॉर्मिंग 16% वाला जो स्कीम है और जो बेस्ट परफॉर्मिंग 23% वाला जो स्कीम है, ये दोनों हमारे पास है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और निपॉन इंडिया विजन फंड, तो ये दोनों फंड हमारे हैं। तो दोनों तरफ है, पर स्कीम मैटर नहीं करती, मैटर करता है अमाउंट। जब भी आप किसी भी निवेशक को, या मेरे, अगर आप अपना खुद का भी निवेश कर रहे हैं सर, आप मान के चलिएगा 2,000, 5,000, 3,000, 1,000 रुपए का जो अपन एसआईपी खुलाते हैं ना, मोर और लेस हम लोग उसके साथ, इन्वेस्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज मैंने कई सारे केसेस देखे हैं। एक मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, अभी जस्ट साल भर पहले की बात, साल भर भी नहीं, करीब करीब 9 महीने पहले की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उनसे 7 महीने पहले मिला था चेन्नई के अंदर, 7 साल पहले मिला था चेन्नई के अंदर। वो अभी एक किसी बैंक के अंदर जीएम है, प्रमोशन होकर आए हैं बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में। तो मैं वहाँ के सीनियर को मिलने गया था, तो मेरे को वहाँ मिले, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उज्जवल जी मेरे कैबिन में आइएगा वंस आपका मीटिंग खत्म हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, आता हूँ मैं। तो मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, उज्जवल जी आपने 7 साल पहले मेरे साथ बहुत बहुत गलत किया। मैंने कहा सर, 7 साल पहले मैंने तो गलत तो कुछ किया ही नहीं। बोले यार आपने मुझे एसआईपी बताई थी। तो मैंने कहा सर वो एसआईपी तो बहुत अच्छी चल रही होगी, और मैंने उस समय उनको निपॉन स्मॉल कैप दिया था। तो बैंकर हैं वो खुद। तो बोले यार आपने दिया तो था, लेकिन आपने उस दिन मेरे को 2,000 रुपए की एसआईपी दी। अगर आप उस दिन मुझे 10,000 के लिए पुश करते, तो कम से कम मैं 5,000 की एसआईपी करता, और 5,000 की करता तो आज मेरी वेल्थ और बढ़ी। आप समझ रहे हैं? तो कई बार हम केवल समझाने के मात्र से भी अपन एक छोटा एसआईपी देते। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एसआईपी की ट्रू वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अपने कस्टमर के साथ जस्टिफाई करना है, बीइंग एज यू एज एन इन्वेस्टर, यू वांट टू जस्टिफाई, कंपाउंडिंग जो है वो तभी दिखेगा जब आपका अमाउंट अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 500 रुपए की एसआईपी नहीं करनी चाहिए, 1,000 रुपए की एसआईपी नहीं करनी चाहिए। मेरे एक बहुत अच्छे पार्टनर हैं जिनका 500 करोड़ का ईयूएम है, और आप ही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका कस्टमर बेस क्या है। बोले जितने भी वाले हैं ना वो सब मेरे वाले हैं। जितने भी वाले मतलब जूता वाला, चाय वाला, सिगरेट वाला, पान बीड़ी वाला, वो सब उनके इन्वेस्टर है। तो ऐसा नहीं है कि 500 रुपए और 1,000 रुपए की एसआईपी नहीं होती, बट मोटे मोटे तौर पे अगर एक अच्छा अमाउंट होता है तो एसआईपी की वैल्यू अच्छी दिखती है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं चाहूंगा अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस स्कीम, ये जो स्क्रीन शॉट है इसको अपने पास रखें। केवल यही चीज समझाना है कि अपने साथ आपके इस जर्नी के अंदर आपको कई सारे यंग इन्वेस्टर मिलेंगे, उनको एक चीज समझाना है। और ये अपना, बिलीव मी, ये चीज समझाना अपने लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज हम इस प्रोफेशन में हैं, हमारा प्रोफेशन दूसरों को सही रास्ता दिखाना, राइट। तो ये बताना है कि बॉस आप जितना जल्दी अपना वेल्थ क्रिएशन का, अगर आपको 5 करोड़ अगर आपको इकट्ठा करना है, करेक्ट, तो आप जितनी जल्दी उस टारगेट को चालू करेंगे, आपको उसके लिए कम पैसे देने पड़ेंगे।
बट जितना डिले आप करते जाएंगे, आपका कॉस्ट जो है उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। आई थिंक अगर किसी को 5 करोड़ इकट्ठा करना है, अगर वो 30 साल की उम्र में है, अगर वो डिले करता है, तो सीधा सीधा 15,000 रुपया जो है उसका 31,000 रुपये के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसको। ही नीड 31,000 टू अचीव 5 करोड़ ऑफ वेल्थ ओवर द पीरियड। मैं हमेशा बोलता हूँ टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपाउंडिंग कोई 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में नहीं आती है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है वो है। और अगर आप इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा चार्ट है ये। तो ये सिंपल शब्दों में ये कहता है कि अगर आपने 10 साल या उससे ऊपर की अगर आपकी एसआईपी है, कैसा भी मार्केट हो, कितना भी मार्केट गिरे, कुछ भी हुआ हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव 10 और उससे ऊपर साल का है, तो नंबर ऑफ टाइम जो आपका जो पॉजिटिव रिटर्न है वो आप देखेंगे 8 साल, 10 साल, 12 साल के ऊपर आपका पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। सो द मोर द टेन्योर, the better the compounding, the better returns that you will going to earn from। बहुत अच्छा स्लाइड। और बीइंग एज, मैं समझता हूं कि मेरे साथ कई सारे स्टार्टअप भी जुड़े होंगे, कई लोग जुड़े होंगे जो कि अभी उन्होंने अपना एसआईपी का जर्नी स्टार्ट किया है या एमएफडी का बिजनेस स्टार्ट किया है। आई थिंक एसआईपी केवल वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एसआईपी आप हर एक चीज में कर सकते हैं। किसी ने अगर हाउसिंग लोन ले रखा है, तो उसके हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट को जीरो करने के लिए आप उसको एसआईपी रिकमेंड कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ आप एसआईपी कर सकते हैं। हॉलीडे प्लानिंग, एजुकेशन थिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर आप एसआईपी के साथ। आप कई सारे मेरे पार्टनर होंगे जो यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, वो शायद एलआईसी वगैरह भी करते होंगे। तो अपना जो एलआईसी का जो प्रीमियम होता है उसको आप एसआईपी में करिए, काम खत्म। बैंक के पास पैसा क्यों रखना है? पैसा आपके कस्टमर का वहां होना चाहिए जहां उसको अच्छा रिटर्न मिले। सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव, दैट की गोल। कई प्रकार के गोल हो सकते हैं, केवल वेल्थ क्रिएशन ही एक गोल नहीं है। अब जैसे मैंने बोला, मेरे दादाजी हमेशा एक चीज बोलते थे कि भैया, पैसा हमेशा एक चीज बोलता है, मनी ऑलवेज स्पीक्स। और मनी क्या बोलता है? मैंने एक ही चीज सीखी है पिछले 25 सालों में, बड़े छोटे सब लोगों से मिलके। मनी ऑलवेज स्पीक दैट यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। यू सेव मी टुडे मीन्स एसआईपी, एंड आई विल सेव यू टुमारो मीन्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मीन्स मैंने जो आज एसआईपी में एक्यूमुलेट किया, 20 साल 30 साल बाद जाके वही पैसा मेरे एसडब्ल्यू के रूप में जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो वो मेरे को सेव करेगा, वो मेरी लाइफ को और इंजॉय करने में मदद करेगा। सो एसआईपी विद एसडब्ल्यूपी ऑप्शन इज ऑलवेज बिन बेनिफिशियल। एंड माय फ्रेंड्स, एक चीज और है, जब आप ये दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं ना, तो मैंने ऐसा देखा है और आप भी देखेंगे अपने समय के अंदर आगे चल के, कि जब आपने एसआईपी को रिटायरमेंट के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट किया है कि भैया आप आज आप एसआईपी चलिए, और फिर जब वो पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा उसको आप सिस्टमैटिक विड्रॉल के द्वारा आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग एंजॉय किए, आप अपना रिटायरमेंट एंजॉय किए। जब मैंने इस तरीके से एक एसआईपी का बंडल अगर कस्टमर को दिया है, मेरे इन्वेस्टर को दिया है, तो आप मान के चलिएगा, बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव आए, इन्वेस्टर उसमें कभी आपसे नहीं पूछेगा कि भाई ये बाजार गिर गया है, एफपीआई निकल गए हैं, कि एफपीआई आ रहे हैं, कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहीं नहीं पूछेगा। उसको पता है कि बॉस, ये मेरा गोल जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल है, ये जो मेरी एसआईपी का ऑब्जेक्टिव है वो मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग का है। आई थिंक आई शुड कंटिन्यू विद इट। और अगर आप देखेंगे, मैं आपको ये स्लाइड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी देख रहे हैं आप इसको प्लीज कैप्चर करिए। और बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है ये क्या कहता है कि साहब, लोग बाग बोलते हैं साहब एफडी, राइट, अपना सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? बैंक अपने साथ कंपटीशन है। और बैंक कंपटीशन क्यों है? क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टर है उसको वो अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है बैंक के अंदर, उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। रिटर्न भी मिलता है तो उसको एक टैक्सेशन ज्यादा लगता है। अब आप सोचिए, किसी ने अगर XYZ बैंक के अंदर 5 करोड़ की एफडी कर रखी है, राइट, या उसने मोटा मोटा 1 करोड़ की एफडी कर रखी है, अब उसको हर महीने पैसा चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट है, रिटायरी है, उसको हर महीने पैसा चाहिए। तो अगर वही 1 करोड़ रुपया अगर किसी डेट फंड में अगर वो लगाते हैं, और पहले साल से ही अगर वो SWP देते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल देते हैं, तो आप मान के चलिएगा वहां पे तो उनको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा पूरी इनकम पे। बट यहाँ पे एक फीफो का अप्लाई होता है,
तो उनका जो टैक्स आउटगो होता है वो मोटा मोटा 2.93% का होता है। दैट इज व्हाट दिस स्लाइड इज बीन अबाउट, राइट। मैंने इसमें 7% का विड्रॉल लिया है और 30% का टैक्सेशन लिया है, और 10 रुपए की एनएवी के ऊपर एक्सपेक्टेशन है। मंथली एसडब्ल्यूपी जो है वो 0.50 है, तो 50,000 रुपए का मोटा मोटा विड्रॉल हम लोगों ने उसमें लिया है। सो दैट इज व्हाट, सो मोटा मोटा 18 लाख रुपए का अमाउंट जो है 50,000 के हिसाब से 36 महीनों में उन्होंने निकाला है। टोटल कैपिटल गेन जो उनका आया उस पे वो 52,000 का आया, विच इज फेयरली वेल। और अगर यही एस डब्ल्यू पी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इक्विटी के अंदर करते हैं, तो आप देखिए चाहे कोई भी टैक्स हो, 12.5% हो, कुछ भी हो, जो आपका इफेक्टिव टैक्स आएगा वो मोटा मोटा 1.8% के आसपास ही आएगा। बड़ा अच्छा स्लाइड है, आप लोग इसको रखिएगा अपने बिजनेस के अंदर। दूसरा, ये तीसरा, ये जो स्लाइड है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको बड़ा गौर से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं कई लोग, आप सब लोग, उनमें से कईयों का हाउसिंग लोन होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आपने अ, अपना एसआईपी इस तरीके से किया है, अपने हाउसिंग लोन को इस तरीके से एडजस्ट किया है, तो मोटा मोटा आप अपना हाउसिंग लोन जीरो कर देंगे, इंटरेस्ट जो है उसको जीरो कर देंगे। और ये किसी और का एग्जाम्पल नहीं है, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल। जब मैंने 2010 में जब बॉम्बे में आया था, मैंने सबसे पहले हाउसिंग लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मेरा जो ईएमआई था उसका मैंने 10% एसआईपी में कर दिया था, और आप विश्वास नहीं मानेंगे 7 साल के अंदर, वो भगवान की कृपा से, बिकॉज बाजार अच्छा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तो और हम लोग तो अच्छे ही काम के अंदर हैं, तो हमने लोन भी चुका दिया। लेकिन 7 साल में जो इंटरेस्ट हमने दिया था बैंक को, राइट, वो इंटरेस्ट से ज्यादा मैं, मेरे जो 10% जो मैंने एक्स्ट्रा मेरे ईएमआई का चालू किया था एसआईपी के रूप में, केवल उस 10% से मैंने सारा जीरो कर दिया मेरा इंटरेस्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, दैट कि अगर आपका 50 लाख का लोन है, 20 साल का टेन्योर है, 8.80 के आसपास का जो आपका इंटरेस्ट चल रहा है आज की तारीख में, वो है आपका ईएमआई 44,000 का आता है। अगर 1/3 आप अपने ईएमआई का अगर एसआईपी करते हैं मोटा मोटा, तो 10 साल के टेन्योर के अंदर आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो करीब करीब 35,30,000 के आसपास की हो जाएगी। एंड व्हाट वी आर बीन एक्सपेक्टिंग इज हार्डली अ 12% काइंड ऑफ अ रिटर्न। सो दैट इज व्हाट इट इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो कस्टमर हैं जिनको हाउसिंग लोन देते हुए 2 से 3 साल हो चुका है, पहले साल में आप किसी को भी कनेक्ट मत करिएगा, बट जो 2 से 3 साल हो चुका है जिनका, उनको आप जरूर कनेक्ट करिएगा इस ऑब्जेक्टिव के साथ। आई थिंक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी मच गुड फॉर देम फॉर दिस केस। आ, इसमें अब मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है बॉस, एसआईपी करनी है, हर महीने 100 एसआईपी का टारगेट होना चाहिए हमारे हमारे जहन में। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस स्ट्रांग होता है, मेरा कस्टमर बेस बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली मेरी इनकम बढ़ेगी। तो मैंने जो आपको ऑफिस कार जो मैंने बताए थे, उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि हर महीने 100 एसआईपी मुझे करनी है, हर रोज मुझे 100, मतलब हर महीना 100 एसआईपी करनी है, और एसआईपी 10,000 रुपए से कम की नहीं करनी है। दैट इज वॉट माई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज ऑल। इफ आई एम working on this part, I think my income will be very good. My income will be very good, and I will achieve the dream which I have, and I will help hundreds of people dreams also. अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा, जो बाजार में अभी शोर हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि लोग बाग बोल रहे हैं कि साहब एसआईपी बंद कर दीजिए, या एसआईपी बंद हो रही है, या रिटर्न नेगेटिव है। तो मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताना चाहूंगा। आप सब लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और मेरे करण अर्जुन आएंगे। राखी जी ने कितने साल पेशेंस रखा, 22 साल, आई थिंक 22 साल उन्होंने पेशेंस रखा, जब रीबर्थ हुआ करण अर्जुन, और जब वो उनसे मिले, राइट, राखी जी जब उनसे इस पिक्चर में मिली। तो पेशेंस इज द ओनली थिंग इन एसआईपी। और अगर वो पेशेंस आप अगर बना के रखते हैं, तो मैं मानता हूं आपके करण अर्जुन आएंगे ही आएंगे। देखिए, बड़ा छोटा सा मैं इसके अंदर एग्जाम्पल सेट करके आपको बता रहा हूं कि एक एक एग्जाम्पल है ए। आप शांति से देखिएगा, क्योंकि बाजार में हर समय बाजार एक जैसा नहीं होता है, हर समय कभी, और हर बार कोई नई
कोई नई कहानी आती है बाजार को नीचे ले जाने के लिए, और बाजार ऊपर जाने के लिए फिर एक नई स्टोरी आती है। बाजार कभी भी पुरानी स्टोरी या पुराने कहानियों पे नहीं चलता है, बाजार हमेशा एक नया स्टोरी बनाता है। मोटा मोटा ये भी जो आप मंदी देख रहे हैं, मोटा मोटा 12% के आसपास का जो अभी निफ्टी जो गिरा है फ्रॉम फ्रॉम इट्स टॉप, आई बिलीव इसके अंदर भी कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारी ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बॉस यूएस 10 ईयर बेंचमार्क जो है वो 4.5 के ऊपर है। तो 4.5 के ऊपर है, तो अगर वहां पे किसी को अगर 10 से 11% के आसपास का रिटर्न मिलेगा, तो इमर्जिंग मार्केट में वो पैसा क्यों डालेगा? दैट इज वन। दूसरा ये है कि लास्ट 3 क्वार्टर की अर्निंग जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है। तो अगर बिलो एक्सपेक्टेशन है तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो मैंने जो एक्सपेक्टेशन के साथ बाजार में पैसा लगाया था, अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है, सो डेफिनेटली मेरा जो पैसा है मैं वहां से विड्रॉ करके जहां मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है मैं वहां पे पैसा लगाऊंगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि बॉस ग्लोबल टेंशन हैं, ग्लोबल में वरी है, इन्फ्लेशन अभी भी काफी हद तक ऊपर है, इंटरेस्ट रेट हिंदुस्तान में काफी हद तक ऊपर है। तो एक रेजिडुअल इनकम जो है इन्वेस्टर के पास अभी है नहीं, कंजम्पशन आपका स्लो डाउन हो गया है। सो दैट इज ऑल्सो लिंकिंग टू दी स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। सो ओवरऑल एक इकोनॉमी में जो है, जो हम 8% के हिसाब से जो ग्रो कर रहे थे, अब वो हम 6.5 के आसपास ग्रो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो पीरियड है 1-2 साल का, अगले 2-3 साल, मतलब अगले 2-3 क्वार्टर्स और ऐसा चल सकता है। बट आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन वन शुड इन्वेस्ट more than what we invest when the market at all time high. So बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए आप देखिए, थोड़ा सा गौर, मैं आपका 2 मिनट इसमें लेना चाहूंगा। किसी ने अगर 2 लाख रुपए का निवेश किया है 10,000 रुपया एसआईपी के हिसाब से जुलाई 2014 और मार्च 2016, तो मोटा मोटा उनका 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का निवेश उनका 1,84,000, 1,84,840, कितना परसेंट नेगेटिव? 9% नेगेटिव हो गया। बट अगर उन्होंने अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा, इफ द इन्वेस्टर हैज कंटिन्यू इट्स एसआईपी, सो उनका रिटर्न कितना आया? 31 जन 2025, द रिटर्न व्हाट ही हैज अर्नड इज ऑलमोस्ट 20%। ये कौन सा फंड है? निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसकी एनएवी 4,000 हो गई थी, जो एक जमाने में निफ्टी की वैल्यू होती थी और एक जमाने में सेंसेक्स होता था। एग्जाम्पल बी देखिए आप, 2017-2019, राइट? वही मोटा मोटा 2,10,000 रुपया हो गया आपका, उसका वैल्यू -5% हो गया। मोटा मोटा जो प्रॉफिट है, जो आपका लॉस है, वो 10,000 का है। बट अगर उन्हीं निवेशक ने अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा होता 10,000 का, तो वो रिटर्न आपका 23% के आसपास का बैठता है 31 जन 2025 का। ये इल्स्ट्रेशन है, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा हुआ है पास्ट में। 2018-2019 का भी अगर आप टाइम पीरियड देखें तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न था एसआईपी में। ऑब्जेक्टिव था कि आप एसआईपी बंद कर सकता था इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर ने एसआईपी कंटिन्यू रखी। आई थिंक उनका 24% का रिटर्न है। मैं आज की तारीख में बात करूं तो जो आपका निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, जिसमें आपने कई इन्वेस्टर्स को पैसा, उनका एसआईपी उनका आपने करवाया होगा, तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट आज की तारीख में 1 साल में उनका कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। बट आगे क्या होगा? आगे तो अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली, अगर पास्ट के हिसाब से देखें, बाजार हमेशा ऊपर जाता है तो नीचे भी जाता है, लेकिन फिर दोबारा ऊपर ही जाता है, सबको ऊपर ही जाना होता है। सो इन दैट प्रोस्पेक्टिव आई थिंक वी कैन सी अ बेटर रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम इफ द इन्वेस्टर कंटिन्यू इट्स एसआईपी। सो करण अर्जुन आएंगे अगर आपके पास पेशेंस है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आई थिंक बाजार का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है, 60,000 करोड़ के आसपास का इसमें निवेश है। और इसकी भी वही कहानी थी जो ग्रोथ फंड की थी। आप देखिए, 2% का नेगेटिव रिटर्न, 10% का नेगेटिव रिटर्न था। 2018-19 में तो -21% का रिटर्न था नेगेटिव। बट अगर उन्हीं निवेशक ने अगर अपना पैसा कंटिन्यू रखा, तो आप देखिए 27% के आसपास का रिटर्न उनको आए। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये सिंपल सा है सर, कि पैसा तब बनता है जब अपने को अच्छा वैल्यूएशन मिलता है। अच्छा वैल्यूएशन कब मिलता है? जब बाजार नीचे होता है, जब लोग बाग बाजार में निवेश करने से डरते हैं, और जब एक बाजार अनसर्टनिटी के दौर से गुजरता है, जैसे आज गुजर रहा है, उस समय आपको एक अच्छा प्राइस पे, एक अच्छी कंपनी एक अच्छी प्राइस पे मिलती है। आप देखिए ना, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने
पीक से 50-50% के आसपास नीचे गिर चुकी हैं। क्या आगे भी गिरेंगी मैं कह नहीं सकता हूं, बट चूंकि अगर वो अच्छी कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, और 50% अपने पीक से नीचे गिर चुकी हैं, आई होप दे विल गिव यू बेटर रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम इफ business continues. The similar large cap, which is again one of the best performing fund in the industry, the same story. अगर आपने देखा तो लार्ज कैप के अंदर भी मोटा मोटा 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है, बिकॉज अभी सबसे ज्यादा एफपीआई ने पैसा ही लार्ज कैप से निकाला है। बट होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आज की तारीख में वैल्यूएशन भी जो अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो आगे चल के मेरे ख्याल से इस फंड में एक बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर देख सकता है अगर वो एसआईपी कंटिन्यू करता है। ये अलग अलग सिनेरियो के अंदर हमने चार्ट में डिवाइड किया है, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप को। सो हर एक जगह पे अगर आप देखें जैन के अंदर तो स्मॉल कैप में 7% का नेगेटिव रिटर्न है, 4% का नेगेटिव रिटर्न है, मल्टी कैप में, लार्ज कैप में 2% का, मिड कैप में 1% का। बट अगर सिनेरियो के अंदर आप देखें पुरानी की तरफ है, लाइक 31 मार्च 2009 का अगर मार्केट देखें तो 28% का रिटर्न था। अगर इन्वेस्टर ने केवल 6 महीना अपना एसआईपी कंटिन्यू किया होता तो रिटर्न पॉजिटिव में आ गया, और 31 मार्च 2010 तक अगर उन्होंने एक साल और एक्सटेंड किया होता तो रिटर्न उनका 28% के आसपास का पॉजिटिव आ गया। मैं इसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, अपने फाइनेंशियल मार्केट से ही है। तो तो उन्होंने बोला कि यार हम अभी बीच में जो आज के 7-8 महीने पहले, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले एक फंड आया था डिफेंस का, डिफेंस और पावर का फंड आया था, और बड़ा अच्छा ईयूएम लेकर गए थे बाजार से। तो बोले यार मैंने उसके अंदर उज्जवल जी एसआईपी चालू कर दी और अभी तो उसमें बहुत ही नेगेटिव रिटर्न है। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला, बॉस आपने उस समय गलती करी थी, उस समय गलती करी थी एक सेक्टर में डालने की जब वो सेक्टर अपने पीक पे था, राइट। अब आप दूसरी गलती कर रहे हैं उसको बंद करके जब वो सेक्टर आज अच्छे भाव के ऊपर आपको मिल रहा है। तो एक गलती आदमी करता है, भगवान माफ करता है, बट दूसरी गलती और उसी गलती को दोबारा अगर आदमी रिपीट करता है तो वो फिर आदमी नहीं कहलाता है। तो मेरी जो उनको एडवाइस थी कि भैया जो आपने एसआईपी चालू करी थी उस फंड में उस समय, उस एसआईपी को कंटिन्यू रखें, और अगर हो सके तो अगर आपने 10,000 का निवेश किया था उसको 15,000 कर, तभी आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेरा एक उनको ऑब्जेक्टिव था। तो मैं यहाँ पे केवल एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपका निवेशक, अगर आपका इन्वेस्टर ये बोलता है कि साहब मेरे एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न है, तो आपको उसको ये नहीं कहना है कि आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। आपको उसको ये कहना है कि सर अपनी एसआईपी डबल करें, क्योंकि ये समय है एसआईपी करने का और बेहतर। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को पकड़ना है। इंडिया जो है अगले 2030 तक ऐसा मानते हैं कि $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी जो है करीब $4,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर ये सब चीजें हैं, और इंडिया बहुत बड़ी कंजम्पशन की स्टोरी है, इंडिया इज मोर डिपेंडेंट ऑन द डोमेस्टिक कंजम्पशन रादर देन एनीथिंग एल्स व्हाट वी आर बीन सीइंग एज ऑफ नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। सो बड़ा अच्छा एक स्टोरी है इंडिया का। तो अगर वो गोल्डन एरा इंडिया का कैप्चर करना है, आई थिंक एसआईपी कंटिन्यू इज नॉट माय ऑब्जेक्टिव। इंक्रीज, स्टेप अप दी एसआईपी, आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एसआईपी कंटिन्यू करने से। दैट इज व्हाट माय। और एक बहुत अच्छी स्लाइड है, बड़ा अच्छा डेटा पॉइंट है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अ, मतलब बड़ा, मतलब इतनी प्यारी तरीके से ही आपको समझा रहे हैं कि अगर किसी फंड ने आपको 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है तो मान के चलिए वो फंड 10 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न देगा। तो देखिए इसके अंदर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ये बीएससी सेंसेक्स को लेके किया है। तो पहले 5 साल में आपका जो रिटर्न था उस पर्टिकुलर फंड का वो था 14% के आसपास, बट अगर उन्होंने कंटिन्यू किया 10 साल में, 10 साल में टोटल रिटर्न जो उनका आया वो करीब 18% का आया। तो अगर ऐसा लगता है कि कोई फंड आपने किसी निवेशक को दिया है और वो आज अच्छा नहीं कर रहा है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो डेटाबेस ऐसा बताता है कि जिस फंड ने आपको 5 साल खराब रिटर्न दिया है, अगले 5 साल अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो उस फंड से आप बेहतर रिटर्न कमाएंगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कितनी बार बोलते हैं
बॉस रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एसआईपी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो कॉस्ट एवरेजिंग कब होती है? जब हमको नीचे के लेवल में बाजार में और पैसा डालने का मौका मिले, तो मेरी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, नहीं तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती ही नहीं है। सो दैट इज द रीजन व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे हियर विद यू। बड़ा अच्छा स्लाइड है। आप इसका भी अगर आप चाहें तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मेरा ये मानना है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये 100 एसआईपी का जो आपने टारगेट हमको दिया है, तो ये कैसे अचीव होगा? तो मैंने तो उनको केवल रामचरितमानस के अंदर एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, तो वो शेयर किया, और मुझे मौका मिला है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। परहित बसे जिनके मन माही, तेहु जग दुर्लभ कुछ नहीं। तो जिनके मन में दूसरों का हित बसा है, जिनके मन में दूसरों के लिए अच्छा है, तो उनके लिए दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। कोई नामुमकिन नहीं। सो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, हमको लोगों से मिलना है। जितने लोगों से मिलेंगे, एसआईपी की जरूर बात करें। आप कहीं चाय पीने जाएं, आपको अगर होटल में कोई कर्मचारी आपको चाय देने आ रहा है, उससे पूछें कि आपने एसआईपी करी है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मेरा अभी मैं 3 महीने पहले की बात है, मैं चेन्नई गया था, और एक हमारे बड़े एनडी हैं, हमारे बाजार में बड़े एनडी हैं। तो मैं उनके जोनल ऑफिस में गया, तो उनके जो जोनल हेड थे उनसे मैं मिला। उनको मिलने के बाद जब मैं बाहर आया, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी, मैंने उनको थैंक यू बोला, और थैंक यू बोल के, ना जाने मेरी क्या आदत है, मैं जिसको भी देखता हूँ मैं हमेशा पूछता हूँ क्या आपने एसआईपी कर रखी है, राइट? तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा मैडम आपने एसआईपी कर रखी है? तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा आप कितने साल से इस ऑफिस में काम कर रही हैं? बोले मैं 2 साल से काम कर। मैंने कहा आप 2 साल से काम कर रही हैं और आपने एसआईपी नहीं कर रखी है? मतलब मैं ये सोच रहा था कि आपने बहुत एसआईपी कर रखी होगी, बट तो मेरे साथ जो मेरे कलीग थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा बॉस इनकी आप एसआईपी खुलवाएंगे, चाहे पहला चेक आपको अपनी जेब से देना पड़े, लेकिन आई वांट दैट दिस पर्सन शुड हैव एसआईपी। सो ये मेरा मौका है। तो एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए भी। एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों की सेवा करने के लिए भी। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन अ, हम फाइनेंशियल डॉक्टर तो हैं ही आज की तारीख में, और फाइनेंशियल डॉक्टर मैं समझता हूँ फार्मा डॉक्टर से ज्यादा बड़ा होता है। सो अनंत, मैं इतना से ही कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं पूर्ण विराम लगाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि लोगों को जो मैंने शेयर किया है वो समझ में आया होगा, बड़े सिंपल तरीके से। अ, आप तो लोगों का जो भी क्वेश्चंस है या जो भी कुछ है, अनंत, ओवर टू यू। थैंक यू सर। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चंस एक एक करके चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, एंड सर आप सभी के सवालों का उत्तर देंगे। सर वी कैन सी देयर आर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। प्लीज। So the first question is from Shivani Srivastava ji, that which scheme should we recommend for converting FD amount into mutual fund investments? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं, शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, मैं कई बार, हमारे जो पार्टनर हैं, वो क्या है, कई बार गलती करते हैं कि भाई एफडी का इन्वेस्टमेंट है, तो क्यों ना हम उनको हाइब्रिड फंड दे दें, क्यों ना हम उनको बैलेंस एडवांटेज फंड दे दें, क्यों ना हम उनको मल्टी एसेट फंड दे दें। एक चीज आप याद रखिए, अगर एफडी का पैसा है तो कस्टमर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको रिस्क नहीं लेना है, एज सिंपल एज इट। रिस्क नहीं लेना है, तो रिस्क नहीं लेना है, तो हमको हाइब्रिड में नहीं जाना है, हमको डेट फंड में ही जाना है। सबसे पहली चीज आप गांठ बांध के रख लीजिए। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर जो होता है ना, आपका निवेशक जो होता है, वो आपको अपनी एफडी के बारे में बताता ही नहीं। वो क्यों नहीं बताता? क्योंकि हमारे सर पे लिखा रहता है कि हम ज्यादा रिटर्न दें, तो वो हमको बताता नहीं। तो अगर एफडी का पैसा है, तो उसके लिए जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड में, वो है डेट फंड। पहली चीज। पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब मैं डेट फंड चूज कैसे करूं? मेरे को अगर डेट फंड अगर देना है निवेशक को, तो मैं कौन सा डेट फंड चूज करूं, ये एक सवाल आता है। अब कई तरीके के डेट फंड है, आप देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर।
लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, लॉन्ग टर्म फंड है, गिल्ट फंड है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, प्योर गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी का। और एक हमारा निपॉन इंडिया का है, सॉरी समझ आता हूँ, एक हमारा निपॉन इंडिया का फंड है निवेश लक्ष्य फंड, बहुत ही बेहतरीन फंड है, आप देखिएगा उसको समय मिले तो अगर आपको एफडी का पैसा है वो एफडी में जाना चाहिए। अब कौन से डेट फंड में जाना चाहिए, एफडी का पैसा कौन से डेट फंड में जाना चाहिए, ये हमको कस्टमर से समझना पड़ेगा कि जो एफडी है वो कितने साल के लिए उनको रखना चाहते हैं, राइट, कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो अगर उनकी एफडी है, अगर वो 5 साल या उससे ऊपर की एफडी निवेश करना चाहते हैं, तो आई थिंक वो फंड जिसका ड्यूरेशन 3.5 साल या 4 साल के ऊपर है, हमको वो फंड उनको देना चाहिए, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, जैसे कि गिल्ट फंड हो गया, ये फंड उनको हमको देने चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव 3 साल का ही है, मात्र 3 साल के हिसाब से ही वो एफडी करना चाहते हैं, तो उस केस में उनको 2 से 3 साल वाले जो ड्यूरेशन फंड है, जिनका ड्यूरेशन, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन होता है ना, एक तो एवरेज मेच्योरिटी होता है और एक ड्यूरेशन होता है, राइट, तो जहां ड्यूरेशन 2 से 3 साल के आसपास का पोर्टफोलियो का है, आपको वो फंड अपने निवेशक को देना चाहिए। इस केस में 2 से 3 साल के केस में कौन से आते हैं, 2 से 3 साल के केस में आपका शॉर्ट टर्म फंड आता है, बहुत अच्छे फंड है, बाजार के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छा रिटर्न है उनमें, और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है वो इसके अंदर आते हैं। और आप देखिए, आप एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की अगर मैं आपसे बात करूं बड़े सिंपल तरीके से, आप बैंक में एफडी डालते हैं, कॉर्पोरेट एफडी करते हैं, राइट, इन्वेस्टर कहाँ करता है, बैंक में डालता है, कॉर्पोरेट एफडी करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में हम लोग डालते कहाँ है, जो आपका फंड मैनेजर है वो कहाँ पैसा डालते हैं, वो एनसीडीज में पैसा डालते हैं, ट्रिपल ए रेटेड, डबल ए रेटेड कंपनी की, वो बैंक की सीडीज खरीदते हैं, वो एनबीएफसी की एनसीडीज में पैसा डालते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में पैसा डालते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स में पैसा डालते हैं, राइट। तो वो एक पोर्टफोलियो को कॉम्बिनेशन करके उन्हीं एसेट क्लास में डालते हैं जहां पे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बस। अब सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाला मैंने 3 साल के लिए, या गिल्ट में मैंने 5 साल के लिए पैसा डाला, राइट, और 7% का रिटर्न फॉर एग्जाम्पल मुझे एफडी में मिल रहा है, 7% का रिटर्न यहाँ मिल रहा है, फायदा किसमें, फायदा इसमें यह है कि टैक्स आर्बिट्रेज आपको डेट फंड में मिलेगा जो कि आपको एफडी में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की एफडी करी हुई है, तो आपको हर साल उस पर 30% का टैक्स देना है। मानता हूं कि अगर जो इन्वेस्टर है वो अगर 1 करोड़ की एफडी करके बैठे हैं तो 30% के टैक्स ब्रैकेट में होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 30% आपको देना ही है, चाहे आप विड्रॉ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपको तो 30% हर साल जमा कराना पड़ेगा, करेक्ट। अगर वही 1 करोड़ रुपया वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या गिल्ड फंड में निवेश करते हैं, तो उनको टैक्स कब देना है, जब वो पैसा निकालेंगे। अब जब 3 साल बाद जरूरत थोड़ी कि मैं पूरा 1 करोड़ रुपया निकालू, हो सकता है मैं 20 लाख रुपया निकालू, हो सकता है मैं 10 लाख रुपया निकालू, जितनी मेरी जरूरत हो उतना निकालू, करेक्ट। तो मैं जितना निकालूंगा उतने के ऊपर मुझे टैक्स देना, बाकी के ऊपर टैक्स ही नहीं देना। तो अगर मोटा मोटा अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर मुझे 7% का रिटर्न मिलता है, 7 लाख का, 7 लाख के ऊपर अगर मेरा 30% का अगर टैक्स बैठता है, तो मोटा मोटा 2,10,000 का है, तो 2,10,000 के ऊपर भी मैं 7% कमा रहा हूँ। तो जो जो टैक्स आर्बिट्रेज है, बेसिकली जो टैक्स का डिफरमेंट है, वो एडवांटेज आपको डेट फंड, जो म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छा मिलता है, तो करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर किसी कस्टमर का 1 महीने 2 महीने से ऊपर भी अगर अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, तो क्यों ना उस पैसे को हम लोग लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड जो है उनमें लगाएं, क्योंकि आज की तारीख में यील्ड बहुत अच्छी है वहां पे। बिलीव करिए, मेरा भी जो पैसा है, मेरे जो सैलरी आती है, मैं कोशिश करता हूँ उसको सबसे पहले मैं लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, बिकॉज मेरी जो ईएमआई है, मेरे जो खर्चे हैं वो 7-8 तारीख के बाद चालू होते हैं। तो मुझे अच्छा 3.5%, 4% के आसपास का रिटर्न मुझे है मनी मार्केट फंड में, लिक्विड फंड के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं। आशा करता हूँ शिवानी जी मैंने आपका आंसर दिया। Yes, sir. So we have another question from Ram Karan जी, that होम लोन के इंटरेस्ट को जीरो करने के लिए ईएमआई का कितना परसेंट एसआईपी होना चाहिए? देखिए साहब, जो मैंने किया मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने आपको एग्जाम्पल शो भी किया, इलस्ट्रेशन भी दिखाया मैंने, तो मैंने जो किया वो बताता हूँ।
मैंने जो आज के 2010 के अंदर जब बॉम्बे में आया था, तो मेरा पहला मकान खरीदा था ठाकुर विलेज के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया था 50 लाख रुपए का। मेरी 48,000 रुपए की ईएमआई थी। मैंने 5,000 रुपए का मैंने उसमें एसआईपी प्लान कर दिया। तो मैंने अपने आप को बोला कि उज्जवल शर्मा, आपकी जो ईएमआई है वो 50,000 की नहीं, आपकी ईएमआई जो है वो एक तरीके से 55,000 रुपए की है। तो मिनिमम 10% जो है आपकी लोन ईएमआई का, लोन टेन्योर के पीरियड तक अगर आप रखते हैं, तो मोटा मोटा आपका इंटरेस्ट रेट जीरो हो जाता है। और मैं कोई 17, 18, 50% की बात नहीं कर रहा हूँ, 30% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र 12% की बात कर रहा हूँ। 12% मतलब अगर 10 साल 15 साल का अगर टेन्योर है, तो 10-12% के आसपास का जो रिटर्न आएगा एसआईपी के ऊपर, वो 10% जो मेरे ईएमआई का है उसके ऊपर जो पैसा आएगा, उसके अंदर ये निवेश बहुत अच्छा रहे। We have another question from Anand ji, that do you think equity savings funds may also generate good returns for FD investors? सर देखिए, मैं आपने वही बात कर दी जो मैं पहले वाली बात कर रहा था। एफडी का पैसा डेट फंड में जाना चाहिए। अगर निवेशक को इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में या किसी भी हाइब्रिड फंड में निवेश करना है, और ही नोज दैट देर इज इक्विटी एलिमेंट, देखिए लंबे समय के लिए इक्विटी रिटर्न देगा वो सब कहानी, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। करेक्ट। मैं बोलूंगा एफडी का पैसा केवल डेट फंड में जाना चाहिए। अगर निवेशक ये मानता है कि बॉस मुझे रिस्क लेना है, तो डेफिनेटली यू कैन गाइड हिम फॉर हाइब्रिड प्रोडक्ट, एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्ट। आप उसमें निवेश कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अच्छा रिटर्न आएगा। बट फिर Okay. भी मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा, एफडी का पैसा एफडी में जाना चाहिए, डेट का पैसा डेट में जाना चाहिए। एफडी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट का पैसा डेट में जाना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। दैट इज वॉट आई बिलीव। हाँ, उससे जो मेरे को इनकम आ रही है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे को जैसे अपन ने मैंने आपको ये एसडब्ल्यूपी वाला चीज आपको दिखाया मैंने डेट फंड के अंदर, तो आपने 1 करोड़ रुपया डेट फंड के अंदर डाल दिया, ठीक है। 7% की आप वहां से एसडब्ल्यूपी ले लीजिए। उस पैसे को आप जो है किसी भी हाइब्रिड फंड के अंदर, किसी भी हाइब्रिड फंड के अंदर, मैं इक्विटी फंड की भी बात नहीं बोलूंगा, किसी भी हाइब्रिड फंड के अंदर आप एसआईपी करा दीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। Okay, sir. मैं We एक have. हाँ. हाँ, मैं एक चीज और बोलूंगा सर, आप सब लोगों को अगर आप सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने मेरे परिवार में किया। हम कई बार इन्वेस्टर को मिलते हैं और उससे पूछते हैं, या मैं अगर आप मेरे आमने सामने हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साहब मैं उज्जवल शर्मा हूँ, और मेरी ये तनख्वाह है, और मुझे कितने की एसआईपी कर, आपका जो हाउसिंग लोन है ना, इसी से मेरे को याद आया ये मेरी एक खुद का पर्सनल फैमिली की कहानी, कि मुझे कितना लोन, मेरे को कितने की एसआईपी कर। किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप एसेस करें कि भाई आपको कितने की एसआईपी करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट अमाउंट ऑफ योर एसआईपी, अगर आप किसी से भी पूछें, तो मेरा ऐसा मानना है कि राइट एसआईपी ऑफ योर्स शुड बी इक्वलेंट टू आपको कितना बैंक आपको लोन दे रहा है एक मकान खरीदने के लिए। मैं बहुत सिंपल टर्म में आपको एक मेरे फैमिली का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे भतीजे थे, बड़े भाई साहब के लड़के, 5 साल पहले उन्होंने जॉब जॉब किया, बड़ी अच्छी कंपनी में है। तो जैसे ही उन्होंने जॉब किया, मैं उनके पीछे पड़ गया, बेटा एसआईपी एसआईपी एसआईपी। तो हम 7-8 महीने बाद दिवाली पे मैं उनसे मिला। जयपुर मेरा निवास स्थान है, तो वहाँ गया, तो मेरे को भिड़ते ही मेरे को बोले चाचा आप बताइए किसमें एसआईपी करनी है और कितने की एसआईपी करनी है। मैंने बोला बेटा किसमें करनी है मेरे से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, बट कितने की करनी है आई थिंक ये बैंक बताएगा। लेट्स बैंक असेस कि तेरे को कितने की एसआईपी करनी चाहिए। बोले चाचा बैंक कैसे। मैंने कहा कल मंडे है, मंडे में बैंक खुल जाएगा, आप बैंक में जाके अपना आधार कार्ड, अपने 3 महीने की सैलरी स्लिप, पापा का ये सब ले जाइए, और आप उनसे केवल एक ही चीज पूछिएगा कि साहब मुझे लोन लेना है घर के लिए, तो मेरे को कितना लोन सैंक्शन हो जाएगा, और कुछ नहीं, कितना लोन सैंक्शन हो जाएगा। बोले ठीक है। मंडे को मेरे को शाम को मिले तो मैंने पूछा मैं क्या हुआ बेटा। उन्होंने बोला चाचा मेरे को 50 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, आपकी जेब में 5 लाख नहीं है बट सामने वाला 50 लाख दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि आपको वो ईएमआई कितने की दे रहा है। बोले चाचा मेरे को 48,000 रुपीज की ईएमआई दे रहा है। मैंने कहा बेटा दिस इज द राइट अमाउंट दैट यू शुड डू योर एसआईपी।
और मैं विश्वास दिला के कहता हूं कि जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, और अंशु आप भी मेरे को सुन रहे हैं ना, मैं आपको भी बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपने एसआईपी कर रखी होगी और अच्छी एसआईपी कर रखी होगी, करेक्ट। यस बट सर। आप एक बार जाके बैंक में जाके अपना ईएमआई एसेस करिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कम एसआईपी कर। ओके। गलत कह रहा हूं अंशु? नो सर। देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, आप देखिएगा। एंड वी हैव लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रजनीश जी, दैट गोल्ड फंड के सब्स्टिट्यूट के लिए सर, गोल्ड फंड का सब्सिट्यूट, देखिए गोल्ड फंड का तो सब्सिट्यूट, फॉर डेट फंड, डेट फंड का सब्सिट्यूट। सर देखिए, गोल्ड किसी गोल्ड में। यस सर। सिर्फ गोल्ड और डेट दोनों एक अलग अलग चीज है। अब चक्कर क्या होता है कि सर जब कोई चीज चलती है हमको तभी वो चीज अच्छी दिखती है। हम्म? अभी मैं एक सेमिनार में था, तो सेमिनार में हम म्यूचुअल फंड वालों के लिए बोला गया है कि यार अब आप हाइब्रिड की बात आज कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे हाइब्रिड? मैंने कहा सर हम तो एक साल पहले भी हाइब्रिड की बात कर रहे थे कि भाई हाइब्रिड आपको करना चाहिए, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड आपको देखना चाहिए, निपॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड बहुत अच्छा फंड है, आपको उसमें डालना चाहिए। बट चूंकि क्या होता है कि जब बाजार एक तरफा चलता है हमको वही चीज अच्छी दिखती है और हम उसी चीज में पैसा डालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वहां हमको एक रिटर्न, पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न इतना ज्यादा दिखता है कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। अभी गोल्ड का भी वही किस्सा हो रहा है कि पिछले एक साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न अगर आप देखें तो गोल्ड ने दिया है, अनडाउटेडली। आगे देगा मुझे पता नहीं, बट क्या गोल्ड एफडी का सब्स्टिट्यूट है? आई हैव माई ओन रिजर्वेशन ऑन दैट। गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% होना चाहिए, उतना होना चाहिए। और वो एफडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हाँ गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% का हिस्सा होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई कैन से। एफडी का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। गोल्ड इसलिए पिछले 3-4 सालों के अंदर अपसाइड हुआ है बिकॉज ग्लोबल अनसर्टिनिटी है। मतलब अमोंग दी कंट्रीज, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गोल्ड किसने खरीदा है? सबसे ज्यादा गोल्ड जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड खरीदा है। और ये सबसे ज्यादा चलन कब चला? जब यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ा, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स ने जो है गोल्ड का रिजर्व जो है अपने एसेट के अंदर बढ़ाना चालू किया। और तब वहां से एक गोल्ड का एक लंबी तेजी गोल्ड में हमको देखने को मिली। वनस्पत अभी 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 हाल ही की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, तो करीब करीब 7 से 8% जो डोमेस्टिक गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब डोमेस्टिक गोल्ड जो है वो गिरा है 7 से 8%। तो कंजम्पशन साइड में गोल्ड की गिरावट है, बट चूंकि सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड का रिजर्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है अपनी ट्रेजरीज में, उसके कारण हमने देखा है पिछले 3-4 साल में गोल्ड में बहुत अच्छी तेजी आई है। ये तेजी बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, अभी दुनिया जैसे, जब बीच में जब सेंसेक्स काफी अच्छा था सितंबर में, तो लोग बाग 1 लाख की सेंसेक्स की बातचीत करने लग गए थे, निफ्टी को 50,000 ले जाने की बातचीत करने लग गए थे। तो ये मैं इसमें, गोल्ड बहुत अच्छा निवेश है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डेट का अल्टरनेटिव है, ये मैं इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, मतलब ये मेरा आ, मैं सहमत नहीं हूँ। डेट डेट ही है, एफडी एफडी। यस सर। एंड आज के सवालों में बस इतना ही सर, एंड वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चन। तो एंड उम्मीद करता हूँ सर आप अपने इन्वेस्टर्स को एसआईपी से जोड़ेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स को एसआईपी से जोड़ेंगे आप। मैं एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा आखिरी में आप सभी से, निवेश के साथ आप आईएपीस करिए। जितनी आप आईएपीस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस में बेनिफिट होगा, आप लोगों से इसके साथ जुड़ पाएंगे। हम सबके लिए सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आईएपीस। आईपीस जरूरत नहीं है कि हम कस्टमर को खाना खिलाएं कि डिनर कराएं, हम कस्टमर को सही ज्ञान दें, सही ऑब्जेक्टिव के साथ उसको लें। 10 कस्टमर आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, वो भी मतलब नहीं। 5 आते हैं तो भी बहुत अच्छा है, 10 आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप आईपी जरूर करिए। एसआईपी इस समय मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी की 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है तो उसको आप कोशिश करिए, आप उसको समझाएं कि वो अपनी एसआईपी को 15,000 रुपए करे। किसी की 20,000 की चल रही है तो उसको बोलें 25,000 की करे, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है आपके एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने का, एसआईपी स्टेप अप करने का बहुत अच्छा समय है। तो
आशा करता हूँ मेरा मैंने जो शेयर किया है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर, अपना कीमती समय में देने के लिए और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की सेशन यही समाप्त होती है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।